بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو محسن نقوی کے بعد مسلم لیگ نون کے سرکردہ رہنما جو سعد رفیق ہے، وہ جو ہے انہوں نے محسن نقوی کا جو بیانیہ تھا اس پہ مہر ثبت کر دی کہ اس نظام کو جو ہے وہ خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو پھر کچی بستیوں سے لوگ ڈنڈے لے کر نکلیں گے اور پھر کچھ نہیں بچے گا۔ محسن نقوی نے کہا تھا کہ اس جو ہماری جو نوجوان نسل ہے، یہ جو کاکروچ ہے، یہ آئیں گے اور پورا نظام جو ہے وہ لپیٹ کے رکھ دیں گے۔ ان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے۔ اب پتہ نہیں محسن نقوی صاحب نے کون سے کاکروچوں سے پوچھا ہے کہ آپ کی یہ ڈیمانڈ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کاکروچ کی ان میں جو نوجوان نسل ہے، ان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ میرٹ پہ جو ہے انہیں ملازمتیں دی جائے۔ ایک تو محسن نقوی صاحب پہلے یہ بتا دے کہ سرکار کے پاس ملازمتیں ہیں کہاں، ادارے پہلے ہی اوور برڈن ہیں۔ ملازمتیں تو انڈسٹری نے دینی تھی، انڈسٹری سے ہمارا اٹ کتے کا ویر ہے۔ جب انڈسٹری نہیں ہے تو ملازمتیں کہاں سے آئیں گی؟ سرکار کتنی ملازمتیں دے سکتی ہے جو پہلے ہی اوور برڈن ہے؟ تو ان جنزی سے اس نظام کو خطرہ ہے یا نہیں، لیکن 80 اور 90 کی دہائی کے جو لوگ ہیں، پتہ نہیں وہ کون سی جنریشن کہلاتی ہے، ان سے اس نظام کو خطرہ ہے۔ جو دن کو 3 وقت کھانا تو بھول سکتے ہیں، لیکن بجلی کا میٹر دیکھنا نہیں بھولتے کہ کہیں 200 یونٹ کراس نہ ہو جائے، کیونکہ اس کے بعد انہیں 6000 کا ٹیکہ لگنا ہے۔ تو محسن نقوی صاحب، ملازمتیں جو ہے وہ انڈسٹری نے دینی ہوتی ہے، اور انڈسٹری کا ہم پہلے ہی چکا جام کر چکے ہیں، کیونکہ ہماری پرائرٹی جو ہے وہ ٹریڈ ہے۔ تو پہ کوئی ملک، کوئی ریاست ایسی ڈھونڈ نکالے جو ٹریڈ کے ذریعے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی ہو۔ تو ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کی پرائرٹی نہیں ہے کہ یہ معاشی پہیہ چلے، اس ملک کی انڈسٹری لگے، کیونکہ انڈسٹری جو ہے ایک محنت طلب قوم ہے، اور ہماری اشرافیہ محنت کرنے کے قائل ہی نہیں ہے۔ ان کی پرائرٹی تو ریئل اسٹیٹ ہے، جو کہ ایک ڈیڈ انویسٹمنٹ ہے، کیونکہ اس ریئل اسٹیٹ میں انہوں نے 400-500 کنال جگہ لینی ہے اور 4-5 ہزار پلاٹ بیچ دینے، پھر قوم جو ہے وہ فائلیں لے کے پھرتی رہے۔ تو صرف یہ بجلی کے میٹر پہ جو ہے وہیں سے ٹیکے نہیں لگاتے، یہ ہر میدان میں اس قوم کو ٹیکے لگا رہے ہیں۔ ان کی پرائرٹی نہیں ہے کہ ملک کا معاشی پہیہ چلے، ملک میں انڈسٹری لگے۔ تو اس کے لیے انہوں نے کیونکہ 60 روپے یونٹ جو ہے وہ بجلی کر دی۔ اب 60 روپے یونٹ جو ہے وہ بجلی لے کے کون احمق ہے جو انڈسٹری چلائے گا؟ اور اگر کوئی چلائے گا تو عالمی مارکیٹ میں کمپیٹ کیسے کرے گا؟ ہمارے پڑوس میں ہی لے لیں کہ 3-4-5 روپے یونٹ بجلی ہے، ہم 60 روپے یونٹ بیچ رہے ہیں۔ کیونکہ اس طرح کے نمونے صرف ہمارے پاس ہیں، جو اس طرح کے معاہدے کر کے اس قوم کو جو ہے، اس بھوکی ننگی قوم کو نچوڑ رہے ہیں، ان سے وصولیاں کر رہے ہیں۔ کل ہی میڈیا پہ خبر چل رہی تھی کہ 5 سالوں میں اس بھوکی ننگی قوم سے 7250 یا 75 ارب روپے وصول کیے گئے، اور وصول کر کے ان چند خاندان، ان آئی پی پیز جو ہے، ان کے توندے جو ہے وہ بھری گئی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی توندے بھرنے کے لیے اس بھوکی ننگی قوم سے 7275 ارب روپیہ نکالا گیا اور تندور میں ڈالا گیا ان کی توندے بھرنے کے لیے۔ تو آج اس وقت جو ہماری جو ضرورت ہے بجلی کی، وہ پیک آر میں 26 سے 26 یا 28
हज़ार मेगावाट हमें जो बिजली चाहिए, और हमारे पास बिजली कितनी है? 45,000 मेगावाट। ये 20,000 जो बिजली है ये क्यों बनाई गई? और वो भी दुनिया के महंगे तरीन मायदे करके इन IPPs के जरिए। भाई अगर लोड शेडिंग हो रही थी, मुल्क अंधेरों में था, क्योंकि यही हमारे हुक्मरानों का बयानिया है कि हमने कौम को अंधेरे से निकाला। तो भाई अंधेरों से निकालना था तो इतनी बिजली बनाते जितनी हमारी ज़रूरत थी। ये तो आज हमारी 25 से 28,000 मेगावाट 2026 में ज़रूरत है। जब ये IPPs ये लगाए गए थे उस वक्त तो 17-18,000 मेगावाट हमारी पीक आवर में ज़रूरत थी। फिर 45,000 मेगावाट क्यों लगाई गई? सिर्फ इस एलीट की तोंदे भरने के लिए। सिर्फ एलीट ने अपने जो है तोंदे भरने के लिए इस कौम पर जो है ये क़यामत ढाई कि 20,000 मेगावाट जो है ये एक्स्ट्रा बिजली बनाएगी, और वो भी IPPs के जरिए पूरे अर्ज के सबसे महंगे मायदे करके। उसके बावजूद भी लोड शेडिंग है, क्योंकि ये 20,000 मेगावाट, क्योंकि हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन ही नहीं है। अगर इन लाइनों पर मज़ीद लोड डालेंगे ये निज़ाम सारा लाइनें जो है वो सारी ट्रिप हो जाएंगी। यानी कि हमारी कैपेसिटी ही नहीं है कि 25-28,000 मेगावाट बिजली से ज़्यादा हमारे लोड ये उठा ही नहीं सकती। तो जब लोड ही नहीं उठा सकती थी तो ये बिजली क्यों बनाई गई इतनी एक्स्ट्रा, वो भी महंगी तरीन बिजली। यानी ऐसे ही है कि आप गोलियां बनाते जाएं लेकिन बंदूक ना बनाएं। भाई गोलियां हाथ से फेंकनी है। आपने ये इतनी 20,000 मेगावाट बिजली क्यों बनाई? तो कौम किस तरह ये माफिया जो है, ये हमारी रूलिंग एलीट जो है वो टीके लगा रही। तो मोहसिन नकवी साहब, आप हमें ये ना बताएं इस निज़ाम को काकरोच से खतरा है या किसी और से खतरा है। आप इस कौम को बताएं कि आपके मुजरम कौन है। ये 7,275 अरब रुपया किन की जेबों में गया? किन्होंने 20-22,000 मेगावाट बिजली एक्स्ट्रा बनाई जो हमारी ज़रूरत ही नहीं है। आज भी पीक आवर में जो है इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत हो भी तो हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन नहीं है। तो कौम को ये बताएं कि हमारे मुजरम कौन है कि इन्होंने ये 20,000 एक्स्ट्रा जो है वो IPPs के बिजली बनाई सिर्फ अपनी तोंदे भरने के लिए। कि अगर इन्होंने ट्रांसमिशन लाइन नहीं बिछाई तो कम अज़ कम इनको ही बिछा के हम इनके ज़रिए हम जो है वो बिजली की सप्लाई लाइन जो है वो बहाल कर सकें। इन बेशर्मों को जोड़ के हम जो है ट्रांसमिशन लाइन बिछाएंगे। हैरत है कि इस कौम के साथ ये खिलवाड़। और यही नहीं रुकते, साहिवाल में एक IPPs लगाया गया और वो कोयले से चलता है, और कोयला जो है हम इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट होके कहाँ आता है? वो कराची पोर्ट पे आता है, वहाँ से फिर लोड होता है, ये साहिवाल आता है। आप इन बेशर्मों का ये अंदाज़ा लगाएं, इन नायल नकम्मों का लगाएं कि साहिवाल में इन्होंने कोयले का प्लांट लगाया और कराची से ये साहिवाल में कोयला पहुँचाने का जो रेंट है वो कितने रुपया इन्होंने रेंट पे झोंक दिया। ओ भाई, अगर ये लगाना ही था बेशर्मो ये कराची में ही लगाते। कम अज़ कम इस कौम का अरबों रुपया जो रेंट पे झोंक दिया गया ये तो बच जाता। लेकिन ये कोयले का प्लांट साहिवाल में आके बिठाया, वहाँ लगाया, और वो हमारे मोहतरम मियाँ शहबाज शरीफ ने लगाया था। ये तो हालत है हमारे हुक्मरान, इस रूलिंग एलीट की, इस अशरफिया की, इस भूखी नंगी कौम से कैसी कैसी वारदातें कर। एक तो 20,000 मेगावाट एक्स्ट्रा बिजली बनाई और ट्रांसमिशन लाइन नहीं बिछाई, क्योंकि उसमें इनकी तोंदे उस तरह नहीं भरनी थी। इन्होंने कहा कि बिजली बनाते जाए, IPPs लगाए, क्योंकि उसमें तो फिर हर महीने इनको जो है वो इनके अकाउंट में पैसा आना था। अब 7,275 अरब रुपये 5 सालों में हमने इनकी तोंदों में जो है वो डाल दी।
ये कौम के इन मुजरमों के नाम मोहसिन नकवी साहब हमें बताएं, कम अज कम हम इनका और कुछ नहीं कर सके तो इन पे लानत तो ये कौम भेजे। तो इस कौम को जो है मोहसिन नकवी साहब और साद रफीक साहब काकरोचों से न डराएं। इस निज़ाम को ख़तरा मुझे 80-90 दहाई के जो है उन लोगों से, पता नहीं वो कौन सी जनरेशन कहलाएगी, लेकिन उन लोगों से खतरा है जो खाना 3 टाइम भूल सकते हैं, मीटर देखना नहीं भूलते कि 200 यूनिट क्रॉस ना होते। और इन्होंने अपनी तोंदे भरने के लिए ये क़यामत जो है, ये जुल्म इस कौम पे किए। तो ये निज़ाम जो है, ये जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि जी सिस्टम बैठ गया, तो इस तरह के जो लोग बैठाएंगे, इस तरह की अशरफिया रूल करेगी, इस तरह के हुक्मरान आएंगे जो अकल से पैदल होंगे, जो कोयले के प्लांट आके साहिवाल में लगाएंगे और कराची से कोयला उठा के वो साहिवाल में लाएंगे। इस तरह के निकम्मे और अकल से पैदल लोग होंगे तो फिर कौम को टीके लगने ही हैं। 25-28 हज़ार मेगावाट की ज़रूरत है, 45 हज़ार बना के बैठे हुए हैं अपने तोंदे भरने के लिए। वो ट्रांसमिशन लाइन बिछाई नहीं है कि इसको ग्रेड तक पहुँचाया जाए बिजली, और मायदे भी ऐसे, और वो भी डॉलर्स में, और उसको जो पेमेंट कर रहे हैं वो कैपेसिटी पे अगर 100 मेगावाट का है तो चाहे 1 यूनिट भी इस्तेमाल ना करें, हमने 100 मेगावाट देना है। यार दुनिया में कोई देखे कोई ऐसे मायदे कोई रियासत करती है? ये नमूने सिर्फ हमारे पास है। वो फिर कहते हैं जी सिस्टम बैठ गया, और उसी सिस्टम में मोहसिन नकवी साहब खुद बैठे हुए, उसी सिस्टम में साद रफीक साहब भी बैठे हुए, और कौम को डरा रहे हैं जी काकरोच आएगा और ये कर दे। वो काकरोच नहीं, मुझे तो बूढ़े बाबू से खतरा है, इस निज़ाम को हम जैसे लोगों से खतरा है, ये 70, 80, 90 की दहाई के लोगों से खतरा है जो 3 टाइम खाना भूल सकते हैं, मीटर देखना नहीं भूलते कि 200 यूनिट क्रॉस ना हो जाए। तो ये कहना कि जी मोहसिन नकवी साहब का कि कौन जो हमारी नौजवान नस्ल है वो सिर्फ मेरिट पे मुलाजमतें देखती, उनको मेरिट पे मुलाजमतें मिल जाओ, मुलाजमतें आपने देनी कहाँ से कि आपने जेब में रख के फिर रहे। रियासती इदारे पहले ही ओवर बर्डन, और इंडस्ट्री का आपने बैठा उठा दिया, उसको रिवर्स गेट में डाल दिया, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी इंडस्ट्री नहीं है, हमारी प्रायोरिटी तो ट्रेड है। और कुर्रास पे कोई मुल्क ऐसा ढूंढ निकाले जो ट्रेड के जरिए अपने पाँव पे खड़ा हुआ। माशी पाइया इंडस्ट्री के साथ जुड़ा है, मुलाजमतें इंडस्ट्री के साथ जुड़ी है, लेकिन 60 रुपये यूनिट पर इंडस्ट्री का कैसे चले? क्योंकि ये माफिया जो है, ये जो रूलिंग एलीट है, ये जो अशरफी है, इन्होंने अपने तोदे भरने के लिए ऐसे ऐसे मायदे किए, ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किए कि उसकी सजा आप कौम भुगत रही है। 7,275 अरब रुपए इस कौम पे इन्वेस्ट होते, इनकी सेहत, इनकी तालीम, ये इनके मसाइल सारे ख़त्म हो जाते, लेकिन मसाइल इनकी ख़त्म कौन करे? ये रूलिंग एलीट तो इनको ख़त्म करना चाहती है, इनका खून का आखिरी कतरा तक छोड़ना चाहती है। तो इस निज़ाम को जो है वो जेंजी से ख़तरा है या नहीं उसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस मुल्क के जो 80-90 दहाई के जो लोग हैं उनसे खतरा है, जो 3 टाइम जो है वो खाना तो भूल सकते हैं, वो मीटर देखना नहीं भूलते, क्योंकि वो जो 6,000 का फिर 200 यूनिट के बाद जो टीका लगना है वो इससे खौफ जाता है। तो इस मुल्क को खतरा असल में इन लोगों से है, न कि जेंजी से। लेकिन आप